Hi friends, today in this video we are going to learn about 8086 microprocessor. In the earlier video, we have already studied about the 8085 microprocessor. 8086 microprocessor is the successor of 8085 microprocessor in Intel family. So let's start with 8086 microprocessor. So first of all, we are going to learn about the features of 8086 microprocessor. As we learned in 8085 microprocessor, 8085 microprocessor was a 8-bit microprocessor, but 8086 microprocessor is a 16-bit microprocessor. That means its ALU and internal registers work with 16-bit binary words. What it means? That means the word length is of 16-bit. We can store 16-bit data and calculate or perform execution on 16-bit data because the ALU size is of 16-bit. The second thing, which is slightly different from 8085 microprocessor in this 8086 microprocessor, 8085 microprocessor was a 16-bit address bus, whereas 8086 microprocessor has 20-bit address bus. That means it can access up to the power 20. That means it can access up to 1 MB, 1 megabyte of memory. 8086 can access 1 megabyte of memory. That means कि अगर हम लोग यहाँ पे रैम यूज कर रहे हैं तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर 1 MB के रैम को सपोर्ट कर सकता है. जैसा कि आज के डेट में आप मोबाइल के बारे में बात करते हो ना कि इसमें इतना एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करेगा, तो ये बेसिकली वो जो एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करने की बात की जाती है वो एड्रेस बस पे डिपेंड करता है. सो in 8086 microprocessor, the address bus is of 20 bit. That's why it can access up to 2 to the power 20, means 1 megabyte or 1 MB of memory. Now 8086 has a 16-bit data bus and it can read or write data to memory or port either 16 bits or 8 bit at a time. Let's compare this 8086 to 8085. In 8085 microprocessor, the size of data bus was of 8 bit. That means when you just remember that there was pins AD0 to AD7. That means the where A4 address and D4 data. So that particular bus is used for address bus as well as a data bus. सो जब वो डेटा बस की तरह काम करता है तो वो 8 बिट के तरह का 8 बिट डेटा बस की तरह काम करता है. जबकि हम लोग जब 8086 की बात करते हैं तो यहाँ डेटा बस का साइज क्या होता है? 16 बिट डेटा बस का साइज होता है. बिकॉज इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर the maximum registers and ALU are of 8 bit size, whereas in 8086 microprocessor the internal registers and the ALU and the working of this particular microprocessor is basically on 16 bit. That's why the size of data bus is of 16 bit. That means it can read or write data to memory as well as the ports. When we define the port, that means every input or output device is connected with an port. So when we talk about to read or write from memory or to memory or from input device or to output device, it can access or it can write 16 bit of data. Sometimes it can be used as 8 bit also. It is 16 bit, it have 16 bit data bus, but if we need we can use it as 8 bit as well. The next thing in 8086 microprocessor is it have 16 bit registers of 14 types. That means it have 14 types of 16 bit register. यहाँ पे 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं. तो ये रजिस्टर्स कौन कौन से हैं उसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे. वहीं पे जब हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि एड्रेस और डेटा बस की बात कर रहे हैं, तो अगर कंपेयर करो आप इसको 8085 माइक्रोप्रोसेसर से, तो 8085 में होता था AD0 to AD7 एंड AD8 to A8 to A15. दैट मीन्स वहाँ 8 बिट का डेटा रजिस्टर 8 बिट का
डेटा बस था और 16 बिट का एड्रेस बस है, जबकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट का डेटा बस है और 20 बिट का एड्रेस बस है. सो हियर यू कैन काउंट दिस इज AD0 to AD15. That means here we use data bus from D0 to D15. That means total 16 bit. Whereas we can use this bus as address bus also. There is A0 to A15. So one time it can be used as address bus and one time it can use be as data bus. So whenever we use as a data bus, it is D0 to D15. That means total 16 bit. When we use it as address bus, it is A0 to A15. So A0 to A15, that means here we have 16 and again we have A16 to A19. That means total we have 20 bit of address bus. Now the very much important thing in 8086 is that it can prefetch up to 16 instruction bytes from memory and queues them in order to speed up the instruction execution. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम माइक्रो प्रोसेसर से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कराना चाहेंगे तो वो जो लोडिंग और अनलोडिंग, इंस्ट्रक्शन लोड और इंस्ट्रक्शन अनलोड, जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इस टाइम को कम करने के लिए यहाँ पे 8086 ने एक फैसिलिटी दी कि हम पहले से ही 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स को मेमोरी से लाके यहाँ पे लोड कर सकते हैं और उनको क्यू में डाल सकते हैं, ताकि प्रोसेसर को जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की बात, जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होगा तो उसे रैम से या मेमोरी से फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका पहले से यहाँ एड्रेस अवेलेबल है उस पर्टिकुलर लोकेशन का जहाँ पे इंस्ट्रक्शन और उसके डेटा स्टोर है. तो यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर का और जो हमारा सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स मेमोरी से यहाँ पे लाके स्टोर कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन which next instruction will be executed CPU knows very well. and यहाँ पे क्या होता है, उसे 8085 में जैसे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो फिर उसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहां पे हम एक ही इंस्ट्रक्शन रख सकते थे, बिकॉज वहां पे हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था. बट यहाँ पे हम लोग अप टू 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं. जब हम लोग पावर सप्लाई की बात करते हैं तो ये उसी की तरह जैसे 8085 यहाँ पे भी +5 वोल्ट एज अ पावर सप्लाई यूज किया जाता है. और जब पैकेजिंग टेक्निक की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जैसा कि 8085 में वो 40 पिन का डुअल इनलाइन पैकेज था, बिल्कुल उसी तरीके से 8086 भी डुअल इनलाइन पैकेज में रिलीज किया गया. आप ये डुअल इनलाइन पैकेज देख रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था वो भी इसी तरीके से काम कर रहा था. सॉरी, इसी तरीके से उसका भी वो जो आईसी रिलीज की गई थी वो भी ऐसा ही था. और यहाँ पे आप देख रहे हो 20 लेग इस साइड और 20 लेग इस साइड. तो दिस इज बेसिकली द आर्किटेक्चर, दिस इज द पिन, बेसिकली दिस द 8086 माइक्रो प्रोसेसर. जैसा कि आप यहाँ देख रहे होगे, दिस इज 8086 माइक्रो प्रोसेसर. और इस 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 40 पिंस थे और ये दिस इज द डुअल इनलाइन पैकेजिंग टेक्निक. नाउ we are going to learn about the architecture of 8086 microprocessor. So it is very much important and it is very different from the 8085 microprocessor. So what is the difference between 8085 and 8086 microprocessor? Then if the whole assembly of 8085 microprocessor is common, everything is at same place, but in 8086 microprocessor it is divided into two. So this 8086 microprocessor basically comes in two blocks. That means the first block is known as bus interface unit and the second block is known as execution unit. In 8085 microprocessor everything is in a common block, but here 8086 microprocessor is divided into two blocks. So now the bus interface unit and the execution unit. So why this division is applied in 8086 microprocessor? So the reason is what? So just the reason is the BUI performs all the bus operations such as instruction fetching, reading and writing,
operands from memory and calculating the address of the memory operands, the instruction bytes are transferred to the instruction queue. And the next one, the execution unit executes instruction from the instruction system byte queue. So what these two lines says, बस इंटरफेस यूनिट, बेसिकली जब हम लोग इसका आर्किटेक्चर देखेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर का, तो इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस आर्किटेक्चर में ये जो हमारा बस इंटरफेस यूनिट है और एग्जीक्यूशन यूनिट है उसके क्या मायने हैं। तो बेसिकली उसके जो मायने हैं यहाँ पे वो ये है कि आप जैसा कि देख पा रहे होगे, यहाँ पे इस 8086 माइक्रो प्रोसेसर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है हमारा वो है बस इंटरफेस यूनिट, और जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है एग्जीक्यूशन यूनिट। दिस इज एग्जीक्यूशन यूनिट एंड दिस पार्ट इज बस इंटरफेस यूनिट। जब हम लोग बस इंटरफेस यूनिट की बात करते हैं तो बस इंटरफेस यूनिट का काम होता है कि वो जो मेमोरी से इंटरफेस करे या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरफेस करे, जबकि एग्जीक्यूशन यूनिट का काम होता है कि ये केवल एग्जीक्यूशन की बात करता है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में इंटरफेस और एग्जीक्यूशन दोनों एक साथ किए जा रहे थे, यहाँ पे उन दोनों को अलग अलग किया गया है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉड्यूलराइजेशन का कॉन्सेप्ट रखा गया, मतलब एक पर्टिकुलर काम कोई एक पार्ट कर रहा है और दूसरा पर्टिकुलर काम दूसरा पार्ट कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे एक अप्रोच इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग पाइपलाइनिंग अप्रोच कहते हैं। वो क्या है हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो बस इंटरफेस यूनिट का काम ये होता है कि मेमोरी से डेटा लाना या मेमोरी से डेटा रीड करना या मेमोरी को डेटा राइट करना, इनपुट डिवाइस से डेटा लेना या आउटपुट डिवाइस को डेटा भेजना, ये सारा काम इस बस इंटरफेस यूनिट का होता है। और वहीं पे जब एग्जीक्यूशन यूनिट की बात करते हैं तो एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, जितने भी एग्जीक्यूशन रिलेटेड टास्क होंगे वो सारे के सारे टास्क एग्जीक्यूशन यूनिट में उसको परफॉर्म कराया जाएगा। सो बेसिकली the bus interface unit performs all the bus related operation, and when we use bus for input and output, for reading and writing, so what is the operations like instruction fetching, like reading or writing, or calculating the address of memory operands, where is the operand basically stored in memory. So all these type of functions are executed in bus interface unit, whereas the execution unit only executes the instruction which is fetched by the bus interface unit. यानी bus interface unit ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फेच किया और ये सारा काम उसका है। और एग्जीक्यूशन यूनिट ने क्या किया, वो जो इंस्ट्रक्शन उसने फेच किया है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा, एग्जीक्यूशन यूनिट का। सो बोथ यूनिट ऑपरेट्स asynchronously to give the 8086 an overlapping instruction fetch and execution mechanism which is called as pipelining. This result in efficient use of the system bus and system performance. अब देखिए यहाँ पे क्या है, वहां पे जो कॉमन बस था, यानी 8085 को थोड़ा सा आप याद करो, ध्यान दो, तो वह 8 बिट का इंटरनल बस था। अब अगर हमें इंस्ट्रक्शन को फेच करना है तो उसी 8 बिट इंटरनल बस को यूज करना होगा, और अगर हम कोई कैलकुलेशन करना कहें एलयू में और वहां से जब डेटा को हमें बाहर भेजना होगा तो भी हमें उसे उस 8 बिट इंटरनल बस को ही यूज करना होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एक टाइम पे या तो एग्जीक्यूशन होगा या एक बार फेचिंग होगा। यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देने से फायदा ये हुआ कि एग्जीक्यूशन भी साथ साथ हो रहा है और फेचिंग का काम भी साथ साथ हो रहा है। दैट मीन्स दिस अप्रोच इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग, की काम रुक नहीं रहा है, लगातार फ्लो चल रहा है, उधर डेटा फेच भी हो रहा है और इधर एग्जीक्यूशन का भी काम चल रहा है। जबकि 8085 में ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां जो डेटा बस जो बस था, इंटरनल बस था, वो कॉमन था। यानी उसी बस को यूज करेंगे डेटा को लाने और ले जाने के लिए फ्रॉम मेमोरी और टू मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और उसी को यूज करेंगे जब एग्जीक्यूशन होगा तो उसी बस को यूज करेंगे रजिस्टर से डेटा लाने में और रजिस्टर में डेटा को स्टोर करने में, इंस्ट्रक्शन से को फेच करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। दैट्स व्हाई वहां पे हमें वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं एसिंक्रोनसली, जिसकी वजह से टास्क का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ेगा।
So BIU contains instruction queue, segment register, instruction pointer, and address adder. So these are the register which involves in bus interface unit, and control circuitry, instruction decoder, ALU, pointer and index register, flag register are the part of execution unit. तो इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको डिटेल से रजिस्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आपने इस फिगर में देखा, यहाँ पे इस जब बात करें बस इंटरफेस यूनिट में, तो यहाँ पे है एग्जीक्यूशन, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये हमारे जनरल पर्पस, 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, या सॉरी इंस्ट्रक्शन बाइट स्ट्रीम है, और ये कंट्रोल सिस्टम है। वहीं पे आप देखो यहाँ पे 8 AH, AL, BH, CL, BL, CH, CL, DH, DL ये जनरल पर्पस रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, डेटा रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर ये एग्जीक्यूशन यूनिट में आते हैं। दिस इज द अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन एंड हियर इज द फ्लैग रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर। तो इन सब के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में स्टडी करेंगे। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा बस इंटरफेस यूनिट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि आखिर बस इंटरफेस यूनिट है क्या। So it provides a full 16-bit bidirectional data bus and 20-bit address bus। जैसा कि हमने देखा कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट के उसमें डेटा बस होते हैं और 20 बिट का एड्रेस बस होता है। तो ये 16 बिट बाइडायरेक्शनल डेटा बस होगा और 20 बिट का एड्रेस बस होगा। The bus interface unit is responsible for performing all external bus operation। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो भी इंटरफेस होगा वो इस यूनिट का काम होगा, बस इंटरफेस यूनिट का। और उसमें जो टास्क परफॉर्म होंगे वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, इंस्ट्रक्शन को क्यू करना, ऑपरेंड फेच करना या स्टोर करना, एड्रेस का रिलोकेशन और बस कंट्रोल, ये सारे टास्क बस इंटरफेस यूनिट के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। वहीं पे द बस इंटरफेस यूनिट यूजेज अ मैकेनिज्म known as an instruction stream queue to implement a pipelining architecture। तो यहाँ पे ये पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर का सिंपल मीनिंग यही है कि हम यहाँ ऑलरेडी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, यहाँ पे समझा कि यहाँ 6 इंस्ट्रक्शन बाइट को हम ला के स्टोर कर सकते हैं। और वो 6 इंस्ट्रक्शन बाइट कहाँ ला के स्टोर कर सकते हैं, तो आप ये देखो, ये हमारे पास 6 इंस्ट्रक्शन बाइट है। तो ये जो 6 इंस्ट्रक्शन बाइट में हम लोग पहले से ला के अगर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम लगातार हमारे पास इंस्ट्रक्शन का फ्लो हो रहा है। और इसी अप्रोच को हम लोग कहते हैं पाइपलाइनिंग। यानी यहाँ पे वेट नहीं करना है कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया तो अब इसको हटाओ यहाँ से और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लाके यहाँ पे स्टोर करो। जब हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता तो एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में एक इंस्ट्रक्शन रखते, वो एग्जीक्यूट होता, फिर उसको वहां से रिप्लेस किया जाता और दूसरा इंस्ट्रक्शन लाया जाता। जबकि यहाँ हमारे पास एक साथ 6 बाइट ऑलरेडी पहले से है, तो हम लगातार एक एक बाइट को काम, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरीके से वो एक पाइपलाइन अप्रोच के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। वहीं जब हम लोग एग्जीक्यूशन यूनिट की बात करते हैं तो जितने भी डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग है इंस्ट्रक्शन के, डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को और एग्जीक्यूट करने का जो भी टास्क होगा वो एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म करता है। और एग्जीक्यूशन यूनिट एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्यू इन बस इंटरफेस यूनिट, डिकोड्स देम, generates operands if necessary, passes them to bus interface unit and requests it to perform the read or write bus cycles to memory or input output and perform the operation specified the instruction on the operands। तो एग्जीक्यूशन यूनिट का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करना, जैसा कि वहां पे 8085 में था मशीन इनकोडिंग एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग जो कॉन्सेप्ट था, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग। तो एग्जीक्यूशन यूनिट यहाँ क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब उस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, डिकोड किया जाएगा, और डिकोड करने के बाद उसमें कौन कौन से ऑपरेंड यूज किए जाएंगे, वो ऑपरेंड कहाँ पे हैं, इसके बारे में बस इंटरफेस यूनिट को बताया जाएगा। और बस इंटरफेस यूनिट फिर उन सारे डेटा को उस मेमोरी लोकेशन से और या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना होगा वो बस इंटरफेस यूनिट परफॉर्म करेगा और वो एग्जीक्यूशन यूनिट को प्रोवाइड किया जाएगा। So during the execution of instruction, the execution unit tests the status and control flags and updates them based on the results of executing the instruction। तो जैसा कि 8085 में हमने देखा था कि वहां पे भी फ्लैग रजिस्टर होते थे, 5 फ्लैग होते थे, तो वो डिपेंड करते थे कि कैसा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसके अकॉर्डिंगली फ्लैग रजिस्टर को वहां पे स्टेटस उसके चेंज किए जाते थे। तो यहाँ पे भी स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर या कंट्रोल रजिस्टर होते हैं जिसमें कि स्टेटस को मेंटेन करना होता है।
तो वो कौन कौन से फ्लैग होते हैं, वो कौन कौन सा स्टेटस होता है, वो हम लोग आने फर्दर स्टडी उसकी करेंगे। तो एग्जीक्यूशन यूनिट का ये भी काम होता है कि उस स्टेटस रजिस्टर को अपडेट रखना, मेंटेन रखना। सो अब इस 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो हमें पढ़ना है वो है कि इस 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से रजिस्टर्स हैं और कौन कौन से रजिस्टर के कैसे टास्क परफॉर्म होते हैं, वो किस तरीके से काम करता है। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 14 रजिस्टर होते हैं और ये चार ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला चार जो है जनरल पर्पस रजिस्टर कहलाता है, फिर अगला चार इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर कहलाता है, इंडेक्स पॉइंटर या सॉरी इंडेक्स रजिस्टर कहलाता है या पॉइंटर्स रजिस्टर्स कहलाता है, और चार सेगमेंट रजिस्टर और दो और तरह के रजिस्टर्स होते हैं जिसको हम लोग एक फ्लैग रजिस्टर कह रहे हैं और इंस्ट्रक्शन क्यू कह रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ टोटल 14 तरह के रजिस्टर्स होते हैं। तो ये कौन कौन से रजिस्टर हैं इसकी स्टडी हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।